Hello everyone. Today we will discuss about Biot-Savart application. In previous video we have already discussed about Biot-Savart law and how we can use this Biot-Savart law to determine magnetic field in case of different shape of current carrying conductor. So let's start our topic. First of all, we have to know Biot-Savart law, and this law is used to determine magnetic field at given point due to current carrying conductor. So this give information about small magnetic field which produced due to small current element dl, and that is equal to mu naught 4 pi I dl sin theta by r square, where theta is the angle between dl and r. This is constant permeability of free space. IDL is करंट एलिमेंट. तो हमने डिस्कस किया था कि जो सोर्स है, स्मॉलेस्ट सोर्स ऑफ करंट टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज दिस IDL. वो सबसे छोटा सोर्स जो क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज DL. इफ आई टेक स्पेशल केसेस, तो इसमें हम डिफरेंट थीटा की वैल्यू रखते हैं और चेक करते हैं व्हाट इज द वैल्यू फॉर dB. फर्स्ट केस, इफ थीटा इज 90 डिग्री, 90 डिग्री, दैट मीन्स DL एंड R आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों परपेंडिकुलर होंगे. तो इस केस में जो आपका DL है, से दिस इज DL, current I is flowing in this way and observation point is this point P, and this is displacement vector, R is displacement vector. So angle between DL and R is 90 degree here. This angle is 90 degree. Now what is the magnetic field at point P due to this current carrying conductor? Put the value for theta here. We have mu naught by 4 pi I dl by r square. When we put sin 90 is equal to 1. So यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जब DL and R perpendicular to each other है, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, we obtain maximum magnetic field at point P. This will be maximum magnetic field due to current element DL. Okay, this is first case. Now second case, if we take theta is equal to 0 degree, 0 degree, this observation point lie on the axis of conductor. जैसे हम इसको शिफ्ट करते जाएंगे एंगल कम होगा होगा, एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ आ गया? एट दिस पॉइंट, बिकॉज नाउ एंगल बिटवीन DL एंड R इज 0 डिग्री. तो 0 डिग्री क्या बताता है कि नाउ ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ है? एक्सिस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट P lies on axis of current carrying conductor, CCC, current carrying conductor. In this case magnetic field will be 0. यहाँ पे देखा हमने मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हमें कब मिलेगा? when DL and R are perpendicular to each other, and minimum, या फिर अगर हम कहते हैं 0 मैग्नेटिक फील्ड आपको कहाँ ऑब्टेन होगा? when this observation point lies on the axis of current carrying conductor. तो ये हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे these two values. So note down, when angle is 90 degree and angle is equal to 0 degree, what will the value of magnetic field at observation point P? Now our next topic is magnetic field due to different shapes of current carrying conductor. Now by applying Biot-Savart law,
we determine magnetic field due to different shape of current carrying conductor. जो कंडक्टर की शेप है अगर वो वेरी करेगी तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हम कैसे डिटरमाइन करें. सो कैलकुलेट फर्स्ट फॉर straight conductor. First application is straight conductor. Now current is flowing in a wire which is straight like this. कोई भी straight conductor है, रोड है, वायर है, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है. This current is I. So in this case अगर हम डायरेक्शन देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, for that we use for direction of magnetic field in case of current carrying straight conductor. Okay. In straight conductor बायोट-सेवर्ट लॉ जो है वो सिलेबस में नहीं है. जब हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड इन केस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर, जस्ट हम डायरेक्शन देखेंगे. इट इज नॉट इंक्लूडेड इन सीबीएसई सिलेबस कि जो मैग्नीट्यूड है वो निकालना है बाय यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ. वो हम किसी और रूल से निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर. यहाँ पे डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन क्या होगी. डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे बाय यूजिंग राइट हैंड curl rule. Okay, to determine the direction of magnetic field we use here right hand curl rule. So first of all आपको क्या देखना है, करंट डायरेक्शन. करंट डायरेक्शन कहाँ है. So आप राइट हैंड इसमें यूज करेंगे. थंब को आप कहाँ रखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. देन कर्ल द फिंगर. एंड आपको कैसे रखनी है, कर्ल करके फिंगर नॉर्मल नॉर्मल रखना है. तो जैसे आप इसको नॉर्मल करते हैं तो डायरेक्शन कहाँ आई, अंदर की तरफ. ठीक है, से आपको इस पॉइंट पे निकालनी है एट पॉइंट दिस P. तो डायरेक्शन कहाँ आई, इनवर्ड. तो ऐसे अगर आप किसी भी पॉइंट पे इसके चारों तरफ निकालते हैं तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आती है, अंदर की तरफ. तो सिंपल रूल, राइट हैंड कर्ल रूल, put the thumb in the direction of current, then curl of finger give you the direction of magnetic field. And in case it is, और आपको कैसा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मिलेगा, in the form of circle like this. This is the direction of magnetic field. Okay, now at any point if you want to calculate magnetic field value, it is tangential. अगर हम इस पॉइंट पे निकालते हैं तो आप कैसे देखेंगे कि ये टेंजेंशियल इधर होगा या इधर होगा. उसके लिए हम क्या देखेंगे कि जो राइट हैंड रूल हम यूज कर रहे हैं उसके लिए हम डायरेक्शन ऑफ करंट देखेंगे. एंड जहां आपकी फिंगर कर्ल करेंगी वही आपका जो सर्कल है वो ऐसे कंप्लीट होगा. इन दिस केस करंट ऐसे, तो ये जो गोल गोल घुमा that give you the direction of magnetic field. That means कि अगर आप ऐसे स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं उसके अंदर करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो किस शेप में होता है, सर्कल की शेप में होगा. एंड जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना, आप कैसे करेंगे, उसके अलोंग टेंजेंट देखेंगे. तो एट दिस पॉइंट this tangent like this, that is the direction of magnetic field. At this point this is okay. So write down this rule. By using right hand curl rule we determine the direction of magnetic field in case of current carrying straight conductor. So here put thumb in direction of current, then curl of fingers represent the direction of magnetic field. एंड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, here direction of
magnetic field along the tangent at any point is along tangent at given point. जो आपने ये बनाया है सर्कल इसके किसी भी पॉइंट पर. So in this way we represent straight conductor direction and like this. Second, we use here current carrying circular coil. पहले जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर था वो एक स्ट्रेट वायर की फॉर्म में था. अगर इस स्ट्रेट वायर को हम बेंड कर देते हैं तो वो कैसा हो गया, राउंड. ठीक है, अब उस राउंड में आपने क्या किया, बैटरी लगाई और उसके अंदर करंट फ्लो करवा दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक सर्कुलर कॉइल लाइक दिस. अब करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है. अब डायरेक्शन कितनी हो सकती है, दो डायरेक्शन. दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इफ करंट इज मूविंग इन दिस लूप लाइक दिस, ऐसे मूव कर, और आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ड्यू टू दिस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. अगेन वी यूज राइट हैंड कर्व रूल. अब इसमें आपको देखना है, देखिए दिस इज करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट, ये आप देखेंगे. तो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कोई भी कंडक्टर अगर हम लेते हैं, इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ लेंथ, और हम क्या करते हैं, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, देन कंप्लीट लेंथ के लिए हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं. लेकिन इंटीग्रेट करते टाइम आपको ध्यान रखना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. इफ ऑल द सेगमेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, अगर सभी सेगमेंट की वजह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम आती है तो आप उन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. अगर डिफरेंट सेगमेंट क्या देते हैं आपको, डिफरेंट वैल्यूज, देन आप क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे. तो फर्स्ट हम चेकआउट करेंगे स्मॉल सेगमेंट लेंथ के लिए. क्लियर. नाउ आपको क्या करना है कि इसके सेंटर में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ है, एट द सेंटर ऑफ कॉइल. This is P point, observation point. Current is flowing here like this and we cut this element DL. Now DL direction and this is R. Clear this point? This is distance between current element and observation point, that is displacement vector. अब आपको thumb कहाँ रखना है, in the direction of current. Then curl of finger give you direction of magnetic field. फिर से देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है, दिस वन. कर्ल करिए फिंगर को तो कहाँ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड्स. एंड इनवर्ड डायरेक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय पुटिंग क्रॉस हियर. नाउ ड्यू टू दिस अगर करंट ऐसे जा रहा है, आई करंट, अब आपको क्या करना है कि थंब रखना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट की डायरेक्शन में आपने थंब रखा एंड दिस पी पॉइंट गिव यू क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देगा. तो यहाँ पर थंब ऐसे रखिए, नीचे की तरफ जा रहा है एंड कर्ल द फिंगर, यूज राइट हैंड, कर्ल करिए फिंगर को, जो नॉर्मल होगा दैट गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है. तो ड्यू टू दिस कहाँ आई, इनवर्ड्स. देन चेक आउट फॉर दिस, ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ है, ऊपर की तरफ, डायरेक्शन ऑफ करंट दिस वन, कर्ल करिए अंदर की तरफ. सिमिलरली आप यहाँ पर चेक करेंगे like this. It means due to small segments, आप चाहे कहीं भी इसको डिवाइड करिए सेगमेंट्स को, और पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए अगर आप चेकआउट करते हैं, then at every point direction of magnetic fields towards center, सेंटर की तरफ आएगी, और कैसे आएगी, नॉर्मल इनवर्ड्स आएगी. So that gives कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो किसकी फॉर्म में आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में. Clear this point? If we use here straight conductor, अगर आपने स्ट्रेट कंडक्टर यूज किया, उसके अंदर करंट फ्लो करवाया, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना, चारों तरफ सर्कल की फॉर्म में. अगर आप क्या लेते हैं, एक सर्कुलर कॉइल, उसके अंदर करंट फ्लो करवाते हैं आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन अलोंग द सेंटर जो डायरेक्शन होगी सभी सेगमेंट्स की, दैट इज नॉर्मल इनवर्ड्स.
नॉर्मल इनवर्ड्स है तो हमने चेक किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे अपीयर हुआ है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। तो इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज मिली कि अगर कंडक्टर स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कल की फॉर्म में, अगर करंट फ्लो कर रहा है एक सर्कल की फॉर्म में तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस सेंटर और एक्सिस ऑफ दिस conductor, current carrying conductor. So in this case we can say that both rule are same, दोनों में एक चीज क्या हुई, सेम हुई, राइट हैंड कर्व रूल हमने यूज किया. So write down, if thumb represents the direction of current, then curl of fingers gives direction of magnetic field. ठीक है, ये हमने देखा. सेकेंड हम देख सकते हैं कि अगर कर्ल ऑफ फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट बताते हैं, अगर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हम ऐसे देखें लाइक दिस, इफ कर्ल ऑफ फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट देन दिस थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो दोनों रूल क्या हो गए, एक साथ अप्लाई हो गए. अगर हम देखते हैं कि थंब करंट की डायरेक्शन को देता है, कर्ल ऑफ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, and now if curl of finger give the direction of current then thumb give the direction of magnetic field. So in this case हम देख सकते हैं कि अगर एक क्वांटिटी की डायरेक्शन थंब देता है तो दूसरी क्वांटिटी कर्ल ऑफ फिंगर. इफ कर्ल ऑफ फिंगर एक की डायरेक्शन बताते तो दूसरा ऑटोमेटिकली किसकी डायरेक्शन बताएगा, थंब बताएगा. So we can say if thumb if curl of fingers represent direction of current then thumb represent the direction of magnetic field. So ये बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है अब यूज करना कि कोई भी अगर आपको कंडक्टर मिलता है आइदर स्ट्रेट और सर्कुलर कॉइल, आप कोई भी एक रूल इसमें यूज करेंगे एंड डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एंड इन दिस केस वी हैव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल, इनवर्ड्स, एंड आप इसको डॉटेड रिप्रेजेंट करेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड आया. इन दिस केस ये सर्कल की फॉर्म में तो आप डॉटेड सर्कल ड्रॉ करेंगे. एंड जब आपने एक सर्कुलर कॉइल के अंदर करंट फ्लो करवाया है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा अपीयर हुआ है, इन स्ट्रेट लाइन, तो आप इसको डॉटेड रिप्रेजेंट करेंगे. सो दैट्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट शेप ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर. नाउ वी कैन यूज राइट हैंड कर्व रूल फॉर बोथ straight carrying conductor and current carrying circular coil. If current is flowing in a circular coil, then अगर आप उसको टॉप से देखते हैं और अगर उसको बॉटम से देखते हैं, जो करंट की डायरेक्शन है जब आप टॉप से देखते हैं तो आपको कैसी नजर आएगी, एंटी क्लॉकवाइज. एंड देन वी सी फ्रॉम बॉटम ऑफ कॉइल तो आपको करंट की डायरेक्शन दिखती है लाइक क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो उसको आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, इफ this is top of coil, this is bottom of the coil and current is flowing from top like this. This is top of coil, top of coil, top of coil. अगर आप bottom से देखेंगे तो कैसे लग रहा है आपको, clockwise, and here anti-clockwise, and from bottom it is seen as this is clockwise. So that is simple rule to understand the concept कि जब आप top से देखते हैं, from top of current carrying circular coil, current direction is anti-clockwise. ठीक है. एंड अगर हम बॉटम से देखते हैं तो बॉटम से करंट डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज. दैट इज वेरी सिंपल रूल टू लर्न दिस. ओके, नाउ इफ करंट इज फ्लोइंग इनवर्ड, तो इनवर्ड डायरेक्शन के लिए आप क्या यूज करेंगे, क्रॉस. इफ दिस इज वायर एंड करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस इनवर्ड, तो ऐसे जा रहा है इनटू द बोर्ड लाइक दिस, तो करंट की इस डायरेक्शन को आप कैसे ड्रॉ करेंगे,
ऐसे ड्रॉ करेंगे। एंड अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है तो जो डायरेक्शन होगी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसे होगी? इफ करंट इज लाइक दिस अंदर की तरफ, तो ये फिंगर्स देखिए कैसे घूम रही हैं, कैसे घूमी ये फिंगर्स? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज। अब इसमें भी आपने देखा हमने क्या यूज किया, राइट हैंड कर्ल रूल यूज किया। ओके, इफ करंट डायरेक्शन इज आउटवर्ड, करंट कैसे आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन। तो अब आपको थंब कहाँ रखना है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये बाहर की तरफ। नाउ कर्ल योर फिंगर्स। अब जो फिंगर्स आप कर्ल करेंगे तो सर्कल में कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। सो यहाँ पर जो करंट है दैट इज आउटवर्ड डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन and direction of current normally outwards. Clear? By using right hand curve rule, in this we use की thumb in the direction of current कैसे है? अंदर की तरफ। curl of finger clockwise. In this case current direction normally outward, curl of fingers in anti-clockwise direction. The magnetic field direction is anti-clockwise. अगर हम इसको रिवर्स करके देखते हैं केस को, now if magnetic field is inward, magnetic field कैसे है? inward है। Again now thumb give the direction of magnetic field and curl of finger give you direction of electric current. Now direction of electric current कैसे आएगी? Direction of electric current is clockwise. And if I take direction of magnetic field normally outward, now curl of finger give you direction of electric current. This is direction of magnetic field and this is current direction is anti-clockwise. ओके, अब जो आपको पीछे रूल दिखाया था कि इफ थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट देन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन देगा? कर्ल ऑफ फिंगर्स। एंड इफ कर्ल ऑफ फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देन मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ जाएगा? थंब से। तो ये दोनों ही केस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों को हम प्रूफ कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड कर्ल रूल। सो नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स एंड डायग्राम्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपने देखा था टू चार्जेस आर देयर, वन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दे फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने देखा था कि जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो रिप्रेजेंट करता है, सेम हम देखते हैं इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि मैग्नेट जो होता है वो भी एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो जो डाइपोल की तरह बिहेव करेगा इट मीन्स it has two poles, one is north and other is south poles. And electric field lines कैसे चलती थी? electric field lines from positive to negative. तो वहां पर हम रिप्रेजेंट करते थे इस कंसेप्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट होंगी? फ्रॉम नॉर्थ एंड एंटर टू साउथ पोल, आउटसाइड ऐसे चलेगी। ये नॉर्थ से निकली और कहाँ गई? साउथ में। तो इस पोल से हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से बाहर निकलती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर्स इनटू साउथ पोल। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के लिए हम देखेंगे दिस आर जो बाहर निकलेंगी आउट गोइंग एंड दिस आर इनकमिंग।
तो करंट कहाँ से निकलेगा यहाँ पर, करंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड एंटर फ्रॉम साउथ पोल। तो ये हमने साइन कन्वेंशन के लिए इसको लिख लिया। अगेन इफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स, तो इससे हमने देखा था कि करंट कैसे फ्लो कर रहे हैं, करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ट्स था, आपको किसका डायरेक्शन निकालना है कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है। तो हमने यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल रखी, सो इन दिस केस दिस क्रॉस, अब ये क्रॉस क्या बता रहा है कि फील्ड लाइंस कैसे जा रही है अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ इसका मतलब साउथ पोल, जब एंटर करती हैं लाइंस तो वो किस पोल में करती हैं, साउथ पोल के अंदर। एंड साउथ पोल के लिए हमने यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया, दिस, तो डायरेक्शन शुड बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसको चेक करने के लिए कि यहाँ पर कौन सा पोल प्रेजेंट है नॉर्थ का, हमने यहाँ पर एक कंपास नीडल प्लेस की एंड कंपास नीडल का ये नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। इनिशियली ये ऐसे थी, जैसे यहाँ पर करंट फ्लो हमने करवाया क्लॉकवाइज, सो दिस नीडल डिफ्लेक्ट लाइक दिस। इसका जो साउथ पोल है, दिस इज एस एन, तो इसका जो नॉर्थ पोल है ये गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस। तो इसने क्या इंडिकेट किया कि अगर ये नॉर्थ पोल यहाँ इसकी तरफ जा रहा है तो यहाँ पर कैसा पोल बनेगा, साउथ पोल, क्योंकि साउथ पोल के अंदर फील्ड लाइंस क्या करती हैं, एंटर करती हैं। और ये क्रॉस भी क्या शो कर रहा है कि डायरेक्शन इज व्हाट, इनवर्ड्स। तो इसका हमने एक सिंबल बनवाया अपनी कन्वीनियंस के लिए कि अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है एंड करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस क्लॉकवाइज, तो मैंने इसको ऐसे रखा, इसको ऐसे किया एंड ज्वाइन दिस, एंड दिस इज साउथ पोल। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, इफ करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब कौन सा पोल आपको मिलेगा यहाँ पर, साउथ पोल। सेकंड केस देखिए, इन सेकंड केस इफ करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लाइक दिस। ठीक है, फिर आप कंपास नीडल को इसके पास लेके आए तो आपने ऑब्जर्व किया कि नाउ कौन सा एंड टूवर्ड्स डिफ्लेक्ट होगा, इसका साउथ। दैट मीन्स यहाँ पर कैसा पोल बना, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल में हम क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हो रही हैं, बाहर की तरफ निकल रही हैं। ठीक है, बाहर की तरफ मतलब आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ है, बाहर की तरफ। प्रीवियस केस में देखा था हमने कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे एंटर कर रही हैं, इनवर्ड्स। इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, आउटवर्ड। तो अब आपको चेक करना है कि डायरेक्शन की यहाँ पर कौन सा पोल यहाँ पर क्रिएट हुआ। तो इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सा पोल यहाँ पर बनेगा, तो उसके लिए हमने कन्वेंशन याद रखी कि इफ करंट इज लाइक दिस, हियर दिस एंड हियर दिस, तो ये नीचे की तरफ बनाया, ये ऐसे बनाया और इसको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद द पोल इज फॉर्म नॉर्थ पोल। इट इज वेरी इजी, जस्ट आपको करंट का डायरेक्शन चेक करना है। हियर दिस करंट, तो इसका ऐसे ड्रॉ किया आपने, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है एंड ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर करंट ऐसे नीचे की तरफ, यहाँ करंट ऊपर की तरफ, तो ये आपने ऐसे ज्वाइन किया एंड दिस पोल इज नॉर्थ पोल। So in this manner we can determine direction of magnetic field or pole of magnet by check the direction of current,
this is clockwise direction or anti-clockwise direction. Use sign conventions. This and this is very important. And magnetic dipoles and magnetic field lines behave north pole से originate होंगी and enter into south pole. Now we have seen if current is flowing in the form of a coil or a circular coil, magnetic field at the axis behave like a bar magnet. एक बार मैग्नेट की तरह उसने behave किया and direction of that magnetic field at the center is along the axis of that conductor. कि जब हम एक सर्कुलर कॉइल की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कैसे बना, ऐसा स्ट्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट एंड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर. तो ये चीज आपको याद रखनी है. उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. अभी तक हमने बात की थी डायरेक्शन के बारे में कि आप डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे ड्यू टू सर्कुलर कॉइल. अब हम देखते हैं मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड के लिए हम यूज करेंगे बाय यूजिंग बायट-सैवर्ट लॉ. अब बायट-सैवर्ट लॉ ने क्या बताया था कि जो मैग्नीट्यूड होगा ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. तो उन्होंने सिर्फ किसके बारे में बताया था कि जो स्मॉल करंट एलिमेंट है वो कितना आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड उसने प्रोड्यूस किया. इफ आई टेक दिस सर्कुलर कॉइल and want to determine magnetic field at the center of this coil, current is flowing in this direction. I choose a current element, small current element here DL, that is R. अब जो R होगा सर्कुलर कॉइल है उसके लिए हर जगह सेम होगा बिकॉज रेडियस क्या होगा यहाँ पर हर जगह कांस्टेंट होगा. नाउ एंगल बिटवीन DL and R is 90 degree because DL is perpendicular to R. Put this value, we have dB equal to mu naught upon 4 pi IDL by R square. Put this equation first. Now check out direction. This is DL and its direction is same as that of current. तो IDL अगर हम देखते हैं this and curl of finger represent direction of magnetic field at center is normally inwards. So in this case आप चेक करिए by using right hand curl rule. This is the direction of current. Curl of finger gives direction of magnetic field at this point normally inwards. Then if we check at every point direction of magnetic field तो सबकी क्या आएगी, सेम आएगी. अगर हमें सेम डायरेक्शन मिलती है हर पॉइंट पे इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, सभी को ऐड कर सकते हैं. तो इसके लिए हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नाउ वी कैन इंटीग्रेट ऑल द वैल्यूज. here write down direction of dB is normally inwards direction of all elements is डायरेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स अलोंग लिख लीजिए, अलोंग सेंटर इज नॉर्मली इनवर्ड्स सो एड अप. तो सभी को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो आफ्टर इंटीग्रेशन वी हैव दिस इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL R square. ठीक है. सो दिस इज
total magnetic field at center O। अब आपको कांस्टेंट देखने, म्यू नॉट 4 पाई कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर आई देखिए थ्रू आउट द कॉइल इज कांस्टेंट, आर इज आल्सो कांस्टेंट बिकॉज रेडियस क्या होगा यहाँ पर कांस्टेंट, ओनली वन वेरिएबल इज हियर दैट इज dl, so we can write this I and this is r square and dl। अब आपको सभी dl का सम अप करना है। अगर हम कंप्लीट लेंथ की बात करते हैं, सभी dl को जोड़ते हैं, तो कंप्लीट dl ऑफ ए क्लोज्ड सर्कुलर कॉइल, तो क्लोज्ड के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, दिस क्लोज इंटीग्रल, एंड दिस क्लोज इंटीग्रल टोटल लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई r circumference, so dl is equal to 2 pi r। Put all this value we have mu naught upon 4 pi I by r square into, put the value for this, cancel out these factors, now complete is mu naught I and here this is 2r। So this is the magnitude of magnetic field at center O due to this current carrying coil, and ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए, एज इट इज हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड डायरेक्शन के लिए आप पुट करेंगे यहाँ पे क्रॉस साइन, बिकॉज ड्यू टू ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन दिस सर्कुलर कॉइल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एंड दैट इज नॉर्मली इनवर्ड्स। Now see numerical based on current carrying circular coil। अब आपने कंप्लीट सर्कल के लिए रिजल्ट देखा, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना आया, म्यू नॉट आई बाई 2r, ये आपको याद रखना है। ये हमने देखा कंप्लीट सर्कल के लिए। यहाँ पे आपको जस्ट कितना पार्ट दिया हुआ सर्कल का, 1/4 पार्ट। आपको चेक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O कितना होगा ड्यू टू दिस करंट कैरिंग, दिस इज कंडक्टर, ठीक है, एक वायर ऐसे लगाई इसमें, देन इट इन 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल, देन इज स्ट्रेट। सो क्वेश्चन इज फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दिस इज, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है, एट दिस पॉइंट O। तो हमने स्पेशल केस में देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये जो कंडक्टर है दैट इज अलोंग दिस कंडक्टर, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टर इज इक्वल टू 0। से दिस इज फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0 because this segment is along axis of conductor, ठीक है, and magnetic field along that axis is equal to 0। Again this is along this, say, third segment, this also third segment is along the axis of conductor, so B third is also equal to 0। Only one part, this part contribute to magnetic field। So अब देखिए this is 1/4 सर्कल, कंप्लीट सर्कल का आपको रिजल्ट पता है, तो हम डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, 1/4 क्या आपने किया, फॉर्मूला यूज इज म्यू नॉट आई and this is 2r, result comes out to be mu naught I upon 8r। so ये हमने बात की मैग्नीट्यूड की। अगर हम डायरेक्शन के बारे में देखें तो करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो किसी भी पॉइंट पे आप एलिमेंट कट करेंगे। अब आपको क्या करना है, कर्ल ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी कर्ल ऑफ दिस fingers give you direction of current, then thumb give you the direction of magnetic field। तो आप किसी भी सेगमेंट के लिए चेक करेंगे, करंट एलिमेंट के लिए चेक करेंगे, तो सबका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, नॉर्मली इनवर्ड। सो एट दिस पॉइंट O डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मली इनवर्ड्स
एंड आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 8r एंड बाय पुटिंग क्रॉस हियर, तो ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को शो करेगा. दैट क्रॉस मीन्स नॉर्मली इनवर्ड्स. ठीक है, तो सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने के लिए चेकआउट डायरेक्शन कि सभी एलिमेंट्स की डायरेक्शन सेम है या नहीं है. इफ ऑल एलिमेंट्स आर इंटीग्रेटेड एंड ऑल हैव डायरेक्शन नॉर्मली इनवर्ड्स और नॉर्मली आउटवर्ड्स, देन आप उनको इंटीग्रेट करेंगे एंड डायरेक्ट पुट द फॉर्मूला, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन दिस वे. ओके, इफ कंप्लीट सर्कल नहीं दिया आपको, अब दिया आपको सेमी सर्कल लाइक दिस, और अब बोला गया है कि एट पॉइंट ओ मैग्नेटिक फील्ड निकालिए. तो सेम यहाँ पर भी 3 पार्ट होंगे. दिस इज आई, करंट आई इज फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर एंड आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ. अगेन ड्यू टू दिस पार्ट एंड ड्यू टू दिस पार्ट मैग्नेटिक फील्ड इज 0, magnetic field is 0 for this, magnetic field is 0 for this part because that is along the axis of conductor. Now magnetic field at point O सिर्फ कौन देगा? This half circle value. फिर से आपको क्या करना है, पहले सभी एलिमेंट्स का डायरेक्शन चेक करना है. तो फिर से आप क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में कर्ल ऑफ फिंगर, थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ चेक करिए, एट द टॉप करिए, यहाँ चेक करिए. सभी केसेस में डायरेक्शन क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी. सेम डायरेक्शन है तो आप क्या कर सकते हैं, सभी पार्ट्स को इंटीग्रेट, एंड इंटीग्रेशन के बाद आपको क्या फॉर्मूला मिलता है फॉर कंप्लीट सर्कल. दिस वन आपको निकालना किसके लिए है, हाफ सर्कल के लिए. तो इसमें आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज म्यू नॉट आई बाय 2r, एंड अगर हाफ के लिए निकालना तो आप क्या कर देंगे, दिस इज हाफ म्यू नॉट आई बाय 4r एंड डायरेक्शन इज क्रॉस नॉर्मली इनवर्ड्स. तो ऐसे आप प्रॉब्लम्स को अप्रोच करेंगे एंड चेक आउट कि अलोंग द एक्सिस है या एंगल कितना होगा, एंड सर्कुलर कॉइल को आपको ऐसे देखना है. अब हम देखते हैं एक जनरल फार्मूला जिससे आप कोई भी सर्कुलर कॉइल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, आपको कंडक्टर दिया है इन दिस शेप एंड आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट O. अब इसमें ये थीटा सबटेंड कर रहा है एंगल. नाउ दिस पार्ट अलोंग एक्सिस, दिस पार्ट अलोंग एक्सिस. अब आपको सिर्फ कितना पार्ट के लिए निकालना है, फॉर दिस मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O. तो से दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेगमेंट. ड्यू टू फर्स्ट इक्वल टू 0, ड्यू टू थर्ड सेगमेंट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0. बट फॉर सेकेंड पार्ट अब आपको नहीं पता कि ये सर्कल का कितना पार्ट सबटेंड करता है. तो उसके लिए हम जनरल फार्मूला डिजाइन करते हैं. बाय पुटिंग दैट फार्मूला आप कोई भी प्रॉब्लम या किसी भी एंगल के लिए सॉल्व कर सकते हैं. तो इसमें देखिए, ये अगर आप कंप्लीट करते हैं एंगल तो कितना, 360 डिग्री. अगर हम 1 डिग्री के लिए निकालते हैं, अब इसने कितने पार्ट देखे, हम 360 पार्ट्स करते हैं, 360 में से आपको सिर्फ कितना पार्ट लेना है, थीटा वाला पार्ट. तो अगर हम 1 डिग्री के लिए देखें तो कितना होगा, 1/360. अगर हमें इस थीटा एंगल के लिए देखना है तो हो जाएगा थीटा बाय 360. सो मैग्नेटिक फील्ड फॉर कंप्लीट सर्कल इज म्यू नॉट आई बाय 2r एंड हियर एंगल इज थीटा एंड दिस इज 360 डिग्री. अब जितना भी एंगल आपको गिवन है आप पुट करिए एंड फाइंड आउट द वैल्यू फॉर मैग्नेटिक फील्ड. अब सेम देखिए, दिस इज जनरल फार्मूला. अगर हम इसमें देखते हैं फॉर दिस हाफ सर्कल, तो हाफ सर्कल के लिए आप कितना एंगल पुट करेंगे, जिस 180, थीटा इज 180 है, पुट करिए. जो हमने पीछे प्रॉब्लम की, म्यू नॉट आई बाय 2r एंड दिस इज 180 बाय 360 एंड सेम आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो हमने कैलकुलेट किया. इफ अगर हम देखते हैं 1/4 पार्ट के लिए तो वहां पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री एंड फाइंड आउट द रिजल्ट म्यू नॉट आई बाय 8r. तो ऐसे भी आप प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल.